A very good morning to all and one. This is Dr. Pradeep Yadav, and I'm your subject teacher. And the subject code is CS503. This is the fifth semester subject. So, in this data analytics, today I'm going to start with this hypothesis testing. And as we have seen, as we have already discussed the statistic, and we have discussed that statistic consists of two types. First one is the descriptive statistic, second is the inferential statistic. So we have seen what is a descriptive statistic and why we are using the descriptive and where we are using the descriptive statistic and for which kind of data set we will apply those measure of center tendency and measure of variability. Now, on the other hand, we have another statistic that is the inferential statistic. And in this inferential statistic, uh, we have seen the two two things. We have seen two terminologies. That was the estimation, and second was the hypothesis testing. Okay. So in the previous video, in the lecture number 9, we have covered the estimation part. Now, in today's lecture, I'm going to discuss this hypothesis testing. Okay. Now, these are the content: prerequisite, inferential statistic, estimation, types of estimation, hypothesis, null hypothesis, example, experiment. So one by one, we will look all these things. Prerequisite: basic knowledge about the statistic, normal distribution, and probability. Now, as we have seen, what is the inferential statistic? As we know that by using inferential statistic, we reach a conclusion about a population on the basis of information contained in the sample. Okay, so what does it mean? Actually, in the inferential statistic, in the stat, we are just reaching a conclusion about a population on the basis of the samples, whatever the samples which are available uh, by the population. Actually, what we will do, we will take some samples from that population. Okay, समझ लीजिए कुछ population हमारे पास, उसमें से हमने कुछ samples select किए, and on the basis of those samples we will conclude the things. Okay, so population के बारे में जो भी conclusion हम निकालेंगे, on the basis of that samples we will do that conclusion. Okay? So, as we know that inferential statistic is divided into two. First one is the estimation, and second is the hypothesis testing. Okay. So inferential statistic, I think आप लोगों को अच्छे से clear हुआ होगा, क्योंकि inferential statistic में हम पूरे population को consider नहीं करते हैं यहाँ पे ना, हम population का कुछ part अलग से लेते हैं. For an example, here we are taking the samples. Okay. सो उन सैंपल्स, अब ये भी एक अलग तरीका है कि हम सैंपल्स को रैंडमली ले रहे हैं या सिंपल तरीके से उसको पिक कर रहे हैं. सो वो एक अलग पार्ट है. बट यहाँ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में वी विल टेक सम सैंपल्स एंड वी विल डू सम स्टैटिस्टिक्स ऑन दोज सैंपल्स. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट those samples we will predict the outcomes. Okay. So inferential statistic is divided into two. First one the estimation, and second is the hypothesis testing. What is the estimation? As we have seen that it is a process. It is a process of calculating some statistic based upon the sample data drawn from us from certain population. Okay, so as we know that estimation में हम generally कुछ source samples हमारे पास रहते थे जो हमने sample लिए हुए हैं, तो उनकी help से हम conclusion जो भी estimate करते हैं वो conclusion जो find out करते हैं कि इस population में क्या effect हो रहा है. So estimate is of two types. First one is the point estimate and second is the interval estimate. यहाँ दो तरीके के estimate होते हैं. पहला तो है point estimate and second is the interval estimate. Okay, so estimation में हम generally sample जो हमारे पास है, हम उन sample की help से हम estimate करेंगे चीज़ों को and population के ऊपर क्या effect पड़ रहा है उन चीज़ों का, हम उस चीज़ को predict करेंगे. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Types of estimation मैंने आपको बताया कि point estimate and second is the interval estimate. What is a point estimate? It is a single numeric
value used to estimate the corresponding population value. Okay, so point estimate में हम क्या use करेंगे? We will take only a single numeric value. Okay, whereas in the interval estimate, it consists of two numerical values defining a range of values with a degree of confirmation. तो यहाँ दो चीज़ों को याद रखना है कि पॉइंट एस्टिमेट में हम सिंपल एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू का यूज करेंगे, whereas in the interval we will take two numerical values. Okay, so ये एस्टिमेशन हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है. So आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस. So a statistical hypothesis is an assumption about the population parameter. This assumption may or may not be true. So hypothesis क्या है? Hypothesis है assumptions जो हम assume कर रहे हैं. Okay, so assumptions जो हम हम assume कर लेते हैं कि ये चीज़ फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मेरी क्लास का जो पासिंग परसेंटेज है वो 80% आना चाहिए, तो मैंने अभी assume किया है कि 80% आपका पासिंग परसेंटेज इस क्लास का एवरेज आपका परसेंटेज है वो होना चाहिए. ओके, तो एवरेज परसेंटेज कितना होना चाहिए इस क्लास का? 80%. लेकिन अभी कितना है? अभी तो है नहीं ना. तो ये मैंने अज्यूम किया, दिस इज द अजम्पशन. अब ये अजम्पशन ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. दैट इज द हाइपोथेसिस. ओके, so for instance the statement that a population mean is equal to 10 is an example of a statistical hypothesis. ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, लेकिन मैंने क्या एक स्टेटमेंट दिया है कि पॉपुलेशन का मीन कितना है? 10 है. ये क्या हुआ? एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. ओके, so a researcher might conduct a statistical experiment to test the validity of this hypothesis. Now this is the important one. तो अभी तो मैंने assumption किया, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो मीन है या तो स्टूडेंट जो हमारी क्लास है, समझ लीजिए सी एस ए एस सी एस बी क्लास है, उसका जो परसेंटेज है, जो एवरेज परसेंटेज है वो आपका है 80%. ओके, बट इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है. ओके, अगर आपको याद हो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट. ओके, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए. तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जब उस जो हमने अजम्पशन किया है उसको हम जो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसको वैलिड करेंगे. अब वैलिड का मतलब क्या है? या तो वो ट्रू होगा या क्या होगा. चलिए देखते हैं आगे. Types of hypothesis. There are two types of hypothesis. First one is the null hypothesis and second is the alternative hypothesis. Okay. So null hypothesis है एक पहला part and दूसरा है alternative hypothesis. And in the null hypothesis, as you can see here, we are using a symbol that is the H and base में subscript है इसका 0. Okay. So यहाँ हम subscript में क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं. Whereas in the alternative hypothesis we have A. तो यहाँ सफिक्स में हम लेंगे A. So यहाँ H of A है and then ऊपर है H of 0. Now हम ये डिस्कस करेंगे आज कि null hypothesis क्या है. So in this presentation today I will cover this null hypothesis. Okay. So in the null hypothesis is a statement of no effect or no difference. Okay. The null hypothesis denoted by H0 is usually the hypothesis that sample observation result purely from chance. और एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. Consider a pharmaceutical company supplies the drug. If its drug in the market 20%. Now assume new drug in the market should be 20%. Okay, both should be true. चलिए ये तो हुआ एक theoretical concept. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्लास है, ठीक है, CS एक क्लास है, इस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो ग्रेड्स हैं, अगर सबसे ज़्यादा A+ कैटेगरी में आ रहे हैं, वो मैं आपके जो प्रीवियस डेटा है तो समझ लीजिए उसमें 50 स्टूडेंट में से 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो ग्रेड्स हैं वो A+. ओके,
सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं अब 30 आएंगे, 30 स्टूडेंट्स के A+ ग्रेड होंगे। ठीक है, अभी कितने हैं इस CS जो भी हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स अगर 20 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कितने हैं A+ हैं, तो मैं ये अजम्पशन है, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा हाइपोथेसिस है कि ये क्लास के नेक्स्ट सेमेस्टर में 30 स्टूडेंट्स के कितने आएंगे ग्रेड्स, उनके A+ आएंगे। कितने स्टूडेंट्स के? 30 स्टूडेंट्स। ओके, अब मुझे ये जो मैंने अज्यूम किया है, मैंने जो 30 लिखा है, मैंने किस बेसिस पे किया ये अज्यूम? मैंने जो प्रीवियस जो डेटा था, ओके, जो मैंने सैंपल लिए कुछ, उनके बेसिस पे मैंने ये अज्यूमशन किया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग सेमेस्टर में उनका जो ग्रेड्स है 30 स्टूडेंट्स का A+ रहेगा। ओके, तो ये क्या हुआ? दिस इज द नल हाइपोथेसिस। ये क्या है? नल हाइपोथेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है। सो कंसीडर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाइज द ड्रग प्रीवियस ड्रग। हाँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके जो मार्केट में जो वो ड्रग जो प्रोवाइड करती है, तो उसका मार्केट समझ लीजिए 20% मार्केट में है वो वाली ड्रग। ठीक है, अभी जो ड्रग उसकी है प्रेजेंट में। अब उसको इस ड्रग को अपनी नई ड्रग से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब वो अपनी नई ड्रग को कितना प्रोड्यूस करे, वो तो ये अज्यूम, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या घाटा होगा भाई, क्योंकि अगर बाई चांस इतनी मार्केट में सेल नहीं हुआ तो वो ये अजम्पशन कर रहा है कि अगर मेरे पास अगर मेरी जो करंट में अभी जो ड्रग्स है वो अगर 20% है मार्केट में, तो मेरी जो नई ड्रग होगी वो भी कितनी होगी मार्केट में, उसने अज्यूम कर लिया कि वो भी 20% होनी चाहिए मार्केट में। तो ये इसका नल हाइपोथेसिस। ओके, ये क्या है? दिस इज द नल हाइपोथेसिस। सो दिस इज द चांस। ऐसा हो भी सकता है कि अगर ये हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू रहे कि अगर 20%, अगर बाई चांस ऐसा रहा कि वो 20% लोगों ने सॉरी 20% जो ड्रग मार्केट में अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों ने उसको नहीं कंज्यूम किया, तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा ना भाई। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द नल हाइपोथेसिस। अब वो उसको फॉल्स होना ट्रू होना भी बाद में डिपेंड। ठीक है, तो null hypothesis, basically definition होगी null hypothesis. Now, so theoretical value, previous value equal to observed value. तो हम क्या करते हैं, जो previous जो हमारी theoretical values होती हैं, हम उसके basis पे हम क्या करते हैं, observed value को put करते हैं. Okay, so by using the previous claim, we will find out the observed value. तो हमारी जो observed values हैं, हम जो पिछली values थी उनके basis पे find out. तो यहाँ this is known as the null hypothesis. Okay, now I think null hypothesis सभी को clear हुआ. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल है null hypothesis का. Given the test scores of two random samples, one of man and one of woman, does one group differ from the other? Okay, एक क्वेश्चन है कि हम टेस्ट स्कोर है, अब हम दो रैंडम सैंपल्स ले रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट स्कोर में दो रैंडम सैंपल्स ले रहे हैं। और ये जो रैंडम सैंपल्स लिए हैं, एक तो है मैन का और दूसरा किसका है, वुमेन का। अब ये तो मैंने ले लिया रैंडम सैंपल, लेकिन अब ये बताइए, डज वन ग्रुप डिफर फ्रॉम द अदर? अब जो ग्रुप है हमारा, क्या वो दूसरे से डिफर हुआ, अलग रहेगा क्या? A possible null hypothesis is that the mean male score is the same as the mean female score. तो मेरा अब assumption क्या है? यहाँ तो उन्होंने बोला कि does one group differ from the other? नहीं, अब मेरा assumption ये है कि वो एक ही जो भी population है हमारी, वो एक ही ग्रुप के हैं, एक ही सेम ग्रुप से हैं. तो यहाँ क्या बोलेगा? Possible null hypothesis is that the mean
मेल स्कोर इज द सेम एज द मीन फीमेल स्कोर। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे दोनों का जो मीन है वो कितना लिया है, मीन 1 इक्वल टू मीन 2। ओके, so what we are doing in this example, so we have two scores of random samples। okay, so अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम इसमें ये कंसिडर करेंगे कि दोनों का मीन इक्वल है। अब ये हमारा अजम्पशन है, दिस इज आवर अजम्पशन। ओके, और दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस है कि दोनों का हम क्या कंसिडर करना है, दोनों का मीन इक्वल कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये नल हाइपोथेसिस है। अब ये मीन, अब अभी तो हमने निकाला नहीं, मीन कैलकुलेट तो किया नहीं। ओके, अगर वो कैलकुलेट करेंगे तब इक्वल आए या ना आए वो बात की बात है, वो अपना स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बाद होगा। ठीक, बट अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, हमने क्या कंसिडर कर लिया, अगर दोनों के मीन सेम होंगे तो इससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे हम, तो ये पता चलेगा कि वो एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, एक ही पॉपुलेशन। और कहने का मतलब है जो हमने दो रैंडम सैंपल दिए वो एक ही पॉपुलेशन से लिए। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमने क्या अज्यूम किया कि उन दोनों का मीन सेम है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। So a stronger null hypothesis is that the two samples are drawn from the same population, such that the variances and shape of the distribution are also equal. So stronger null hypothesis क्या होगा, अगर आप दोनों का मीन सेम मान रहे हो तो ऑब्वियसली अगर पूरा हमारे पास में अगर चार पॉपुलेशंस है, मतलब चार अलग अलग पॉपुलेशन सेट है और हम हर एक पॉपुलेशन के सेट का अलग अलग मीन है। ओके, तो वहाँ अगर हम कुछ सैंपल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर उन दोनों का मीन उस पॉपुलेशन वाले से मैच करता है तो ऑब्वियसली वो उसी जो अलग अलग हमारे सैंपल्स भी हमने लिए उन दोनों का अगर अलग अलग सैंपल्स का मीन अगर मैच करता है तो ऑब्वियसली उससे पता चलता है कि हमारा किसका पार्ट है, वो एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है। Are you getting the point or not? Okay, so in this way, this is the null hypothesis. एंड आपको मैंने दो एग्जांपल इसमें बताया कि नल हाइपोथेसिस का हम किस हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे चीज़ों को। Here we have another example. Suppose we wanted to determine whether a coin was fair and balanced. Okay, so a null hypothesis might be that half the flips would result in heads and half in tails. Okay, सो अभी इतनी पार्ट देखते हैं, अभी आपने अल्टरनेटिव नहीं पढ़ा है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे मेरे को नल हाइपोथेसिस में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अगर किसी कॉइन को फ्लिप कर रहा हूँ तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है कि मेरे आधे हेड्स हो और आधे टेल्स हो। ठीक, अभी मैंने ये नहीं बोला है कि मैं कितनी बार फ्लिप करूँगा। ठीक है, अभी मैंने सिंपल क्या बोला है, जब जितनी बार भी मैं फ्लिप करूँ लेकिन मेरे आधे हेड्स आए और आधे टेल्स रहेंगे, ये मेरा अजम्पशन है। ओके, अब दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि अगर आपका अजम्पशन ट्रू नहीं निकलता, फॉर एन एग्जांपल if you are not getting your assumption is true, what will happen, वो केस आपका कहलाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो कौन सा हाइपोथेसिस कहलाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जरा इस केस को देखते हैं कि अगर मैंने बोला कि मैंने जो पॉइंट फ्लिप किया है तो वो हाफ हेड्स है और हाफ टेल्स है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0.5 है कि नहीं। तो ये जो नल हाइपोथेसिस है उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी, 0.5। तो अभी तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि भाई मेरा अज्यूमशन यही है कि मैं जब भी पॉइंट को फ्लिप करूंगा तो आधे मेरे हेड्स रहेंगे आधे मेरे टेल्स रहेंगे, ये मेरा अज्यूमशन है, दिस इज माय नल हाइपोथेसिस। ओके, बट अगर वो चीज़ नहीं रही, मतलब आपने 2 बार पॉइंट फ्लिप किया, ओके, तो उसमें कम हेड्स हैं ज़्यादा टेल्स हैं, तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट इक्वल टू 0.5। अगर वो आपकी नॉट इक्वल टू 0.5 है तो दैट इज नोन एज दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सीधे सा बात ये है कि ये इसका कॉन्ट्रडिक्ट, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या आपका कॉन्ट्रडिक्टरी, इससे नल हाइपोथेसिस। ओके, सो
this is the very important point. So null hypothesis तो डिस्कस कर लिया हमने कि null hypothesis में क्या होता है. Now here we have another example. Suppose we flip the coin 20 times, resulting 5 heads and 15 tails. By the test we can understand that the null hypothesis is not accepted. तो अभी आपका null hypothesis में क्या हमने assumption लिया था कि assumption ये था कि जब भी मैं coin को flip करूँगा चाहे कितनी बार भी करूँ equal number of heads रहेंगे and equal number of tails रहेंगे, दोनों equal रहेंगे. Okay. तो लेकिन अब जब आपने कॉइन को फ्लिप किया तो रिजल्टिंग में कितने हेड्स आए, 5 हेड्स आए एंड टेल्स कितने आए, 15 आए, दोनों इक्वल नहीं है. तो ये कौन सा आपका तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ. आपका नल यहाँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ. ओके, यहाँ नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. और यहाँ पे दो टर्म्स याद रखना, हमें यहाँ पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट होना पड़ता है. ओके, तो यहाँ आपका जो नल हाइपोथेसिस वो क्या रहेगा, तो हम उसको रिजेक्ट, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो दिस इज द अनदर एग्जांपल. Now these are the learning outcomes. Students would be able to learn the inferential statistic basic. So ये null hypothesis में we have seen all these things. Now these are the questions. You need to solve all these questions. Explain the null hypothesis in detail. What is the test of significance in null hypothesis and why we require this? Differentiate point estimate and interval estimate. And what is the degree of confidence? Explain parametric and non-parametric variable. Okay. So यहाँ हमने जो चीजें डिस्कस की है आज था null hypothesis. And we have seen in the null hypothesis that whatever the assumption that we are doing, okay, so that will come under the null hypothesis. Okay. तो दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को कि जो हमारे हाइपोथेसिस है, इन हाइपोथेसिस सीधी सी बात है कि हम जो assumption कर रहे हैं कि वही हमारा assumption जो हम करने जा रहे हैं कि भाई ये इतना ही रहेगा, तो वो assumption जो हमारा है वो किन बेसिस पे हो रहा है, आपके null hypothesis and alternative hypothesis. So here in the hypothesis we have two terms. First one is the null hypothesis and second is the alternative hypothesis. But दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. अगर हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये assumption हमारा ये, लेकिन हमारा जो null hypothesis है वो आपके जो प्रीवियस जो आपका डेटा है उससे हम एस्टिमेट करते हैं. जो हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, assumption प्रेडिक्ट करते हैं कि वो ये चीज़ होने वाली है. ओके, whereas null hypothesis अगर आपका ट्रू नहीं है और अगर वो सही नहीं निकलता है तो ऑब्वियसली उसे हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके, एंड इन दोनों के सिंबल्स H 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं नल को, देन H सफिक्स में A रहेगा अल्टरनेटिव, एंड 1 भी रहता है, हम H of 1 अभी यूज करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए. So this is all about the hypothesis and the null hypothesis, and in the coming lecture we will discuss the alternative hypothesis in a detailed manner, and we will do some numerical also. So null hypothesis and alternative hypothesis, ये दो important topic हैं. And in the statistic, okay, these topics, these are the most important topic in statistic. Okay, तो इनके basis पे ही हम predictions करते हैं. And actually as we know that in the inferential statistic we take the probability. Okay, तो probability के basis पे ही हम measure करते हैं चीज़ों को यहाँ पे ना. एक बार और सुनिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम चार्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ों को. बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में जो भी आप चीज़ों में आप कंपैरिजन करते हैं, मेजर करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. नाउ दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई टेकन माय कंटेंट, and this is all about the null hypothesis. And in the next coming lecture
I'm going to discuss the alternative hypothesis and why we are using this hypothesis, and we will see the different test also. Okay, thank you very much.